Hello, my dear students. Myself, Puspendra Bharadwaj, Assistant Professor, Department of Education, ज्योति विद्यापीठ, वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। पेडागोगी ऑफ इकोनॉमिक्स में आज हम टीचिंग टेक्निक्स पढ़ें। टीचिंग टेक्निक ब्रेन स्टॉर्मिंग के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस द मीनिंग ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग and types of brainstorming and brainstorming in education, purpose of brainstorming, characteristics of brainstorming, and brainstorming as teaching strategy. नेक्स्ट इज एडवांटेजेज। इसके ऊपर आज हम डिस्कस ब्रेन स्टॉर्मिंग के ऊपर डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग इन कंटेस्ट ऑफ टीचिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग इज ए स्ट्रेटजी or tool of teaching used by the teacher in which maximum of all the students participate the responding or presenting view on one topic. This technique encourages new ideas among students which would never have happened under normal circumstances. जो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में जो चीज़ें नहीं हो पाती है बच्चों को टेक्निक एंकरेज होता है। न्यू आइडियाज़, ये जो टेक्निक है नई आइडियाज़ को एंकरेज करती है स्टूडेंट्स के बीच में। मैक्सिमम बच्चों की ये जो स्ट्रेटजी है यूज़ है टीचिंग के लिए यूज़ की जाती है। टीचर के द्वारा मैक्सिमम से मैक्सिमम नॉलेज या उनकी आइडियाज़ को एनकरेज करने के लिए, बच्चों के डेवलपमेंट करने के लिए टेक्निक यूज़ की जाती है। It is a process to design to obtain the maximum number of ideas relating to a specific area of interest. It is a technique where a group of people put social inhabitations and rules aside with the aim of generating new ideas and solutions. It is a technique that maximizes the ability to generate new ideas. Now, types of brainstorming. Brainstorming can either be traditional or advanced. First is traditional brainstorming. Traditionally, for brainstorming, people gather in a room and forward their ideas as they occur to them. They are told to lodge their inhabitations and no ideas shall be judged. Here pupils should build on ideas called out by the other pupils. ट्रेडिशनल क्लासरूम में इकट्ठे हो जाते हैं बच्चे और आपस में डिस्कशन करते हैं। कोई आइडियाज़ नई आइडियाज़ जैसे नहीं होता है इसमें, तो ये ट्रेडिशनल ब्रेनस्टॉर्मिंग, बच्चे डिस्कशन करते हैं बट कोई नए आइडियाज़ का डिस्कशन नहीं होता है इसमें। नेक्स्ट इज एडवांस ब्रेनस्टॉर्मिंग. It is an extension of traditional brainstorming and makes the whole process easier and effective. Advanced brainstorming use new process and new techniques to reduce inhabitations. For example, create and lateral thinking techniques, brainstorming software, new material for simulation and recording ideas. एडवांस ब्रेनस्टॉर्मिंग में जो डिस्कशन होता है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है। बच्चों की इनहेबिटेशंस होती है, उनको रिमूव करती है ये सारी चीज़ों की। नेक्स्ट, नाउ ब्रेनस्टॉर्मिंग इन एजुकेशन। देखो कि क्या क्या है इन दिस फील्ड। द एजुकेशन ब्रेनस्टॉर्मिंग इज ए लार्ज और स्मॉल ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ दैट एनकरेज द स्टूडेंट टू फोकस ऑन ए टॉपिक and contribute the free flow of ideas in the process. In this process, teacher begins the session by posing a questions, problems or by introducing a topic. The student then expresses possible answer, relevant word, and ideas. The contribution is expected without criticism or judgment and is then summarized on a whiteboard by the teacher. These ideas are explained usually in an open class discussion format. ब्रेनस्टॉर्मिंग देखो क्लास में किस तरीके से यूज़ की जाएगी। टीचिंग बिगेन सेशन बाय यूजिंग क्वेश्चंस, प्रॉब्लम आंसरिंग, क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे बच्चों के साथ, डिस्कशन किया जाएगा। फिर उसके बाद
क्लास में जो डिस्कशन होगा यूजुअली उसको क्लास में डिस्कशन के बाद में डिस्कस किया जाएगा पूरे फॉर्मेट को. Purposing of brainstorming. First purpose is to focus student attention on a particular topic. Next is generate particular ideas, and is to teach acceptance and respect for individual differences. Next is to encourage the learner to take a risk in sharing their ideas and opinions. Next is to demonstrate to the student that their knowledge and abilities are valued and accepted. To provide an opportunity for students to share ideas and expand their knowledge by building on each others. तो ये पर्पज़ है बच्चों के अटेंशंस को बच्चों के फोकस को अटेंशन पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अटेंशन बनाए रखने के लिए, पर्टिकुलर आइडियाज़ को जनरेट करने के लिए, और बच्चों के जो ओपिनियंस है उनके से आइडियाज़ उनको शेयर कर सके इजीली. बच्चों की जो नॉलेज है एबिलिटी है उसको बच्चों की इम्प्रूव कर सके, बिल्डिंग नॉलेज, इसके सारे ब्रेनस्टॉर्मिंग के पर्पज़ हैं. नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग. इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी. Maximum of all students can participate. Each student gives their personal views and ideas. Next is each idea is neither right nor wrong. It involves divergent thinking. तो इसमें जो ब्रेन स्टॉर्मिंग देखो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी होती है, बच्चों के जो मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस ब्रेन स्टॉर्मिंग में. बच्चे हर एक बच्चे को अपने कुछ ना कुछ व्यूज़ देने होते हैं, कुछ आइडियाज़ दिए होते हैं. बच्चे आपस में कोई भी जो आइडियाज़ होता है वो गलत नहीं होता है, कोई भी जो व्यू होता है वो गलत नहीं होता है. नेक्स्ट इज इन्वॉल्व डाइवर्जेंट थिंकिंग. इसमें जो डाइवर्जिंग थिंकिंग होती है वो इन्वॉल्व रहती है. नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रेन स्टॉर्मिंग एज टीचिंग स्ट्रेटजी. टीचिंग में ब्रेन स्टॉर्मिंग का यूज़ किस टाइप से किया जाएगा उसके ऊपर देखिए. फर्स्ट ए स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज फॉर्मेट. बच्चों का एक छोटा ग्रुप बनाया जाएगा. दे आर आस्क्ड टू सिट इन ए ग्रुप एंड आर प्रोवाइडेड विद ए पर्टिकुलर इश्यू ऑन टॉपिक. नेक्स्ट इज टीचर एज द ग्रुप लीडर then ask group member to think about the problem and give their ideas. They are advised to find as many solutions to the problem as they can find. They are instructed not to criticize other ideas, but they are free to make attention to other ideas. Students are encouraged to put forward suggestions without hesitation, even if they seem to come up with unusual and unorthodox ideas. Students' ideas are to be listened and accepted patiently and without passing any judgment or comment of any sort until the session is over. Now, for the next topic is advantages of brainstorming technique. First advantage is stimulate and provides varied instruction approach. Next is highly motivating, increase task focus. Next is promote spontaneity and creativity, efficient and producer. And is next advantages involves participant in ownership of ideas, encourage creativity. ये सारे जो ब्रेन स्टॉर्मिंग एक ग्रुप बनाया जाता है. देखो मैं ब्रीफली आपको समझाता हूँ. ब्रेन स्टॉर्मिंग जो टेक्निक है टीचिंग की, इसमें मैनेजमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी इसे यूज किया जा सकता है. ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है, कोई भी एक टॉपिक लिया जाएगा, उस टॉपिक के ऊपर बच्चों को डिस्कशन किया जाएगा ग्रुप में, और वो बच्चा कोई भी आइडियाज़ और कोई भी सजेशन दे सकते हैं, आपस में शेयर करेंगे उस बच्चों को. देन उस सजेशंस के ऊपर एक निचोड़, उस सजेशन का एक निचोड़ निकाला जाएगा, लास्ट में बोला तो रिजल्ट निकाला जाएगा, और जो टॉपिक्स दिया है उसके ऊपर प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने की किया जाता है डिस्कशन के थ्रू. तो बच्चों की इसमें क्रिएटिविटी बढ़ती है, कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्रीज होती है,
एंड बच्चों की जो क्रिएटिविटी, जो थिंकिंग्स होती है बच्चों की, नॉलेज आपस में शेयर करने से नॉलेज भी इंक्रीज होती है। इसके ये ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक है। तो आज हमने ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक के ऊपर डिस्कशन किया। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे बच्चों। थैंक्स अ लॉट।